So, Namaskar, my friend. Today's session we discuss about decline of Mughal, how decline the vast और बहुत बड़ा मुगल एम्पायर कैसे डिक्लाइन हुआ एंड रीज़न बिहाइंड डिक्लाइन ऑफ मुगल एंड वी डिस्कस द लेटर मुगल टाइमलाइन and lastly invaded by Nadir Shah and Ahmad Shah Abdali. So starting from decline of Mughal, we are uh, uh, grouping 4 in before revolt 1857. Group 1 is Indian state like Mughal, Maratha, Bengal, Awadh, Mysore, and discuss group 2 is European traders, English, Portuguese, Dutch, French, and Danish. Uh, Group 3 is only East India Company, and Group 4 is obviously common man. Yes. So before later Mughal, we discuss about the main Mughal era. Akbar, starting from Akbar, he won Battle of Panipat 1, defeating Ibrahim Lodi, defeated Ibrahim Lodi, and established Mughal Empire. And second empire, the emperor is Humayun, and third Akbar. Akbar is very smart ruler or emperor. He expanses on empire, introduced mansabdari system या जागीरदारी system. His reign has 2000 nobles or mansabdars like Jat rank or Sawar rank, of which generally Sawar rank considered army and Jat rank considered revenue, etc. Next coming emperor is Jahangir, and उसके बाद शाहजहाँ जो आर्किटेक्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया. देन औरंगजेब केम टू रूल. he's he is he was very religious, bicotic man and forced conversion into Muslim his motto, and he had 14,000 Mansabdar versus rebellion like Sikh, Marathas. His reign, territorial climax is very important things. Large Largest Indian subcontinent has only one ruler, Aurangzeb. Reason behind decline of Mughal: first, war of succession, especially after death of Aurangzeb. uh, लड़ाई हो गया था इन तीनों बेटों के बीच, और औरंगजेब का एक्सट्रीम पॉलिसी टुवर्ड्स हिंदू राजपूत का सपोर्ट नहीं मिल पाया. वीक सक्सेशन और फैक्शन इन नोबल्स created parties like Irani party, Turani party, Hindustani party, Afghani party, or Hindus like leaders. Irani party we considered Zulfikar Khan, Turani party Nizamul Mulk, Hindustani party Sayyid brother. Fourth Karan, that reason behind decline of Mughal: shifting alliance of zamindars. Zamindars not supported to later Mughal ruler, and that's Karan decline of Mughal. And five reason is Zagirdari crisis or Mansabdari crisis. Sixth reason is rise of regional power aspiration like Sikh, Maratha, Jat. Failure of Mughal economy, external invasion, uh, Ahmad Shah Abdali and Nadir Shah, lack of scientific progress, and rise of independent state Awadh, Bengal, Hyderabad. We see the timeline. This timeline is very important for revision. Starting from later Mughal, death of Aurangzeb 1707, starting a reign of Bahadur Shah I. He known as Shah-e-Bekhabar, एंड हीज़ बचपन का नाम था उनका मुअज्जम, चूँकि 65 ईयर ओल्ड में ये शासक बने, वो भी अपने दो भाइयों को मारकर. compromise and conciliation policy towards Sikh and other empire. सिख के साथ इनके रिश्ते थे, और इनका वही पॉलिसी था कंप्रोमाइज़ एंड कंसोलिडेशन का. वो हाई मनसब ग्रांट किए गोविंद सिंह को सिख गुरु
के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह को, और 1708 में वो मर गए थे गुरु गोविंद सिंह। तो बंदा बहादुर ने रिवोल्ट छेड़ दिया अहमद शाह वन के खिलाफ, जिसमें मुगल अथॉरिटी ने जीत हासिल की बंदा बहादुर के खिलाफ। राजपूत जो कि आगे चलकर राजपूत को हाई मनसब के डिमांड को लेकर एक्सेप्ट नहीं हुआ, उनमें दो बड़े नाम आते हैं, अजीत सिंह एंड जय सिंह, जो कि अम्बेर और मारवाड़ के थे। मराठा 1707 में शाहू को रिलीज कर देते हैं, जिससे मराठा के रिश्ता अमल हो जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। नोबल्स में जागीरदारी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाते हैं, जागीर को डिस्ट्रीब्यूट की जाती है क्योंकि इनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। देन जुल्फ़िकार खान जो कि ईरानी पार्टी के थे, वो इनको हटवा बहादुर शाह वन को हटाकर जहांदार शाह को गद्दी पे लाते हैं, जो कि वज़ीर भी बन जाते हैं। इनके द्वारा जजिया को एबोलिशन किया गया, इजारा सिस्टम, बीडिंग वाली सिस्टम को लाया गया, जिससे पिजेंट्स के ऑपरेशन हुए। पिजेंट्स को बहुत भारी नुकसान और उनको बहुत कष्ट झेलने को मिला। देन नेक्स्ट रूलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फर्रुखसियर, जो सपोर्टेड बाई सैयद ब्रदर हिंदुस्तानी पार्टी। फर्स्ट ब्रदर इज़ अब्दुल्ला खान, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर यानी वज़ीर बने, और हुसैन अली खान मीर बख्शी यानी हेड ऑफ नोबिलिटी बने। बंदा बहादुर का इन्होंने 1715 में एग्जीक्यूशन कर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी को 1715 में फरमान जारी कर दिया, जिसको मैग्ना कार्टा कहते हैं, वो भी विलियम हैमिल्टन के कहने पर। और इनके द्वारा वर्सेस फर्रुखसियर वर्सेस बालाजी विश्वनाथ मराठा वर्सेस सैयद ब्रदर मिलकर साजिश कर इनको हटाया गया। फिर आगे चलकर रफ़ी-उद-दौला थोड़े समय के लिए, और रफ़ी दरजात और दौला दो शासक बनते हैं। अगर हम सैयद ब्रदर के फ़िलासफ़ी की बात करें तो ये किंग मेकर्स की तरह काम करते हैं। इनकी फ़िलासफ़ी एकदम लिबरल है, रिलीजियस टॉलरेंस सब एकदम बराबर है। जजिया को इन्होंने एबॉलिश किया था, राजपूत को हाई मनसब दिए, अजीत सिंह जो कि मारवाड़ के थे, जय सिंह अंबर के थे, और चूड़ामन जाट से इन्होंने दोस्ती की। मराठा बालाजी विश्वनाथ को सपोर्ट किए और उन्होंने भी सपोर्ट के रूप में 15,000 सोल्जर्स दिए इनको, और 25% चौथ एंड 10% सरदेश मुखी दक्कन में लेने के लिए मराठा को अलाउ कर दिए। और नेक्स्ट रूलर विसिन हेयर मोहम्मद शाह रंगीला, नोन एज रोशन अख्तर। इन्होंने कल्चरल डेवलपमेंट किए, उर्दू को बढ़ावा दिए और ख्याल को बढ़ावा दिए। और यहाँ पे 1720 में हुसैन अली को मार दिया जाता है, वो भी निज़ामुल मुल्क और आसफ जा खान और सादत अली के सहयोग से। और 1722 में अब्दुल्ला खान को भी मार दिया जाता है, जिसके बाद सैयद ब्रदर का खात्मा हो जाता है। यहाँ पे हम लोग निज़ामुल मुल्क की बात करें तो ये वज़ीर बनते हैं 1722 में, हैदराबाद का वज़ीर बनते हैं। फिर मुमताज़ खान को भेजा जाता है इनको सबक सिखाने के लिए, लेकिन उनको भी सरखेड़ा के युद्ध में हरा दिया जाता है निज़ामुल मुल्क के द्वारा, और वहाँ के 1724 में अपना न्यू स्टेट इस्टेब्लिश कर लेते हैं निज़ामुल मुल्क। अगर हम इनके टाइटल की बात की जाए तो सरखेड़ा के जीतने के बाद मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा आसफ जाह टाइटल दिया जाता है और वो गवर्नर के रूप में स्वीकार कर लेते हैं रंगीला जी। सादत खान जो कि अवध को इस्टेब्लिश करते हैं आगे चलकर, जिसको बुरहानुल मुल्क भी कहते हैं। मुर्शिद कुली खान इन लोगों से इंस्पिरेशन लेके बंगाल का इस्टेब्लिशमेंट करते हैं, जो कि ये तीनों अवध, बंगाल और हैदराबाद तीन वर्चुअल इंडिपेंडेंट स्टेट निकल कर आते हैं। 1739 में अब्दाली का यहाँ पे इन्वेजन होता है, जिसकी बात हम आगे अगले स्लाइड में देखेंगे। यहाँ पे अगला शासक आता है, एम्परर आता है अहमद शाह बहादुर, जो सन ऑफ डांसिंग गर्ल उदम बाई किबलाए आलम और मोहम्मद शाह के बेटे थे। और इनके वज़ीर थे सफदर जंग, जिसको आगे चलकर इमादुल मुल्क मार देते हैं, जो कि ग्रैंड सन होते हैं निज़ामुल मुल्क हैदराबाद वाले के। और इनके समय अब्दाली
अहमद शाह अब्दाली का इन्वेजन होता है दो बार, और 1749 में और 52 में, जिन जिन कारण अहमद शाह अब्दाली पीस के लिए, शांति के लिए पंजाब और मुल्तान को दे देते हैं अहमद शाह अब्दाली को। फिर नेक्स्ट शासक आते हैं आलमगीर टू। इन्होंने इनके भी रेन में अब्दाली का रेड हुआ और दिल्ली को कैप्चर किया गया, और आलमगीर टू को मुस्लिम और मुग़ल एम्पायर के गद्दी पर बैठने रहने दिया गया अहमद शाह अब्दाली के द्वारा। और इमादुल मुल्क जो आगे चलकर इनको मार देते हैं, उससे पहले हम ये भी देख लें कि जब इन्होंने अब्दाली दिल्ली पर रेड किए थे और आलमगीर टू को रिकॉग्नाइज़ किए मुस्लिम मुग़ल एम्पायर के लिए, तो वहाँ पे एक मीर बख्शी को नियुक्त किए जो कि रोहिलखंड के थे, नाजीबुद्दौला भाई अब्दाली मीर बख्शी बनाया गया, जिसको आगे चलकर मराठाओं ने 1758 में मुग़ल के सपोर्ट में एक्सपेल्ड कर दिया गया, मरवा दिया गया बालाजी बाजीराव के द्वारा, जो कि उस समय कैप्चर किए थे अटक और पेशावर। और उसके बाद इनका पानीपत थर्ड युद्ध होता है और शिवराम यहाँ पे हार जाते हैं। आगे हम उनको भी देखेंगे मराठा चैप्टर में। और नेक्स्ट शासक हमारे बनते हैं शाह आलम टू, जिसके में समय पानीपत थर्ड युद्ध लड़ा जाता है और बैटल ऑफ बक्सर भी होता है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद भी होता है 1765 में। इसको फेगुटिव राजा भी कहते हैं, भगौरा राजा, क्योंकि ये भाग गया था अहमद शाह अब्दाली के इन्वेजन के कारण, और यहाँ बक्सर के युद्ध में भी ये भाग गया था। आगे चलकर 1803 में दिल्ली कैप्चर कर लिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, और 1803 में इनको पेंशन दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, और दिल्ली को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कैप्चर भी कर लिया जाता है, जैसा कि हम लोग देखें। और 1772 में दिल्ली को मराठा के द्वारा भी कैप्चर किया गया था एक समय के लिए। अकबर टू आगे शासक आते हैं जिसके रेन में ईस्ट इंडिया कंपनी क्वाइन को छपवाना बंद कर दिया गया, और राजा राम मोहन राय को टाइटल भी इन्हीं ने दिया था। और लास्ट शासक हमारे होते हैं बहादुर शाह थर्ड, जिसको जफर भी कहते हैं, और ये रिवोल्ट 1857 में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसको हम आगे देखेंगे। और साइडलाइन स्टोरी ड्यूरिंग टाइमलाइन में अगर हम देखें तो 1707 में साहू को रिलीज़ किया गया था, जो कि 1713 तक चलते हैं, और वहाँ से बाजीराव विश्वनाथ और पेशवा बनते हैं, फर्स्ट पेशवा, एंड सेकंड पेशवा बाजीराव वन, और 1720 से 1714 इनके शासनकाल में एक्सपैंड एम्पायर हुआ था इनका, और 1737 में दिल्ली को रेड भी किए थे इन्होंने। और नेक्स्ट शासक बालाजी बाजीराव के अंतिम काल में 1761 में पानीपत थर्ड युद्ध लड़ा जाता है। अगर हम नादिर शाह के इन्वेजन की बात करें तो वो पर्शिया का रहने वाला था, और इधर आया था करनाल के युद्ध लड़ने 1739 में, और रंगीला के शासनकाल में, मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में। तो यहाँ पे वो मोहम्मद शाह रंगीला प्लस शहादत खान प्लस निजामुल मुल्क मिलकर लड़ते हैं, लेकिन हार जाते हैं, और 20 करोड़ का वादा करता है शहादत खान कि दिल्ली में आइए 20 करोड़ रुपए मिलेगा। लेकिन यहाँ पे 53 डेज़ के रूल में नादिर शाह के 70 करोड़ रुपए मिलता है, और मुग़ल एम्परर भी बनता है, पीकॉक थ्रोन ले जाता है, कोहिनूर डायमंड भी ले जाता है, जिस कारण मोहम्मद शाह रंगीला का एम्पायर पूरा एक्सपोज हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे इमर्ज ऑफ रीजनल पावर निकलते रहते हैं, जो कि सक्सेसर स्टेट, इंडिपेंडेंट किंगडम और न्यू स्टेट्स के रूप में बढ़ जाते हैं। अगला इन्वेजन होता है अहमद शाह अब्दाली, जो कि उनका एक गवर्नर के रूप में था, उनका एक साथी ही था, समझिए कि दुरानी एम्पायर का, अफगानिस्तान के आसपास। इन्होंने भारत में 8 टाइम इन्वेड किया, जो कि 8वां इन्वेजन मथुरा का था। इनमें हम देखें तो 1748 से लेकर 1768 के बीच में 8 बार इन्होंने इन्वेड किया। तो 1752 में पंजाब मुल्तान को
हासिल किया उनके द्वारा, अहमद शाह बहादुर के द्वारा हमने देख चुके हैं। और 1756 से 57 के बीच कैप्चर किया दिल्ली को। और वहाँ पे हम देखें कैसे कि आलमगीर को रिकॉग्नाइज़ किया मुग़ल एम्पायर के रूप में, और वहाँ पे एक अपना मीर बख्शी ध्यान रखने वाला वहाँ पे उसको बैठाया, जो कि नजीबुद्दौला था रोहिलखंड का। और आगे चलकर 1761 में बैटल ऑफ पानीपत थर्ड होता है और मराठा एम्पायर पूरा ध्वस्त हो जाते हैं, हार जाते हैं। और आगे हम मराठा के एम्पायर के बारे में कुछ देखेंगे।